So our next question is exercise. Our next question of exercise 13.3 is a cylindrical bucket 32 centimeter high. So beta, this is a cylindrical bucket. This is a cylindrical bucket. According to the question, a cylindrical bucket which is 32 centimeter high. The height of this bucket is 32 centimeter. 32 centimeter. Okay. With radius base 18 सेंटीमीटर. तो बेटा जो इसका रेडियस का जो बेस है वो कितना है 18 सेंटीमीटर. तो ये जो बेस है बेटा उसका रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर. Now the next part of the question is this bucket is emptied on the ground. ये जो बकेट है बेटा ये किससे भरा हुआ है बेटा सैंड से. हमने इसको एम्प्टी कर दिया ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप. और बेटा जो भी वो सैंड थी जैसे आपने उसको एम्प्टी किया ग्राउंड में वो एक कॉन की शेप में बेटा कन्वर्ट हो गई. Once we emptied the bucket into the ground, तो बेटा वो जो सैंड है वो किस शेप में कन्वर्ट हुई है. दैट सैंड कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ अ कॉन. बहुत बार आपने देखा भी होगा बेटा कई बार जो सैंड होती है बेटा वो इस शेप में हमें दिखाई देती है. तो यही यहाँ पर वो बकेट में जो भी सैंड थी बेटा जैसे हमने बकेट को एम्प्टी किया वो जो सैंड है बेटा वो अब इस शेप में दिखाई दे रही है. Next part of the question is if the height of the conical heap is 24 centimeter. According to the question बेटा जो इसकी height है that is what 24 centimeter. The height of the conical heap is 24 centimeter. The height of the conical heap is 24 centimeter. We need to find the radius. बेटा आपको इसका radius find out करना है. Say its radius be small r and we need to find its slant height. और बेटा हमें इसका slant height भी find करना है. Say l. What we need to find its radius and its slant. Okay. तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए. क्या है बेटा एक सेंट्रिकल बकेट है जिसकी हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर. उसका बेस रेडियस जो है बेटा उसका जो बेस है वो कितना है 18 सेंटीमीटर. इस बकेट को बेटा ये पूरी की पूरी जो बकेट है आपकी वो सैंड से फिल्ड है. हमने इस बकेट को एम्प्टी किया ऑन द ग्राउंड. और जैसे बेटा इस बकेट को आपने एम्प्टी किया तो जो इसमें से जो सैंड थी बेटा वो कौन की हीप में यानी कि एक ढेर में इकट्ठी होगी बेटा. और जो हीप है उसकी शेप कैसी है कौन. और उसकी हाइट कितनी है बेटा 24 सेंटीमीटर. उसका रेडियस कितना है बेटा हमें फाइंड आउट करना है. और इसका स्लांट हाइट हमें यानी कि एल और आर दोनों ही फाइंड आउट करना है. So according to the question what has been given beta four cylinder radius is equal to say capital R is equal to 18 centimeter. Height is equal to capital H is equal to 32 centimeter. On the other side beta for cone radius is equal to small r, height is equal to small h say equal to 24 centimeter. We need to find its slant height. Say it is equal to small l. जहाँ बेटा डाउट होगा वहाँ क्लैरिफाई कर ले. अब बेटा जो भी इसका वॉल्यूम था यानी कि जो भी बेटा इसमें सैंड थी वो सारी की सारी हमने एम्प्टी कर दी है. कैन आई से दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
volume of the cylinder is equal to volume of the cylinder is equal to volume of the वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि रेडियस को बेटा हमने कैपिटल आर लिया सिलेंडर का और हाइट भी कैपिटल एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन इज व्हाट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. Right, now what? Pi and pi will be cancelled out and we are left with कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है बेटा 18, so 18 square into capital H. What is the value of capital H? That is 32 and it is equal to 1/3 into small r square. Small h की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 24. Right, now beta it can be written as 18 into 18 into 32. तो कैपिटल 3 है बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और जो 24 है बेटा इट विल बी डिवाइड, राइट, and it will be equal to r. Now 8 3 is 24 and 8 4 is 32. Further 3 1 is 3 and 3 1 is 3. So can I say that beta r square will be equal to what? R square will be equal to 18 into 18. In fact, this 4 can be written as 2 into 2. So what will be the value of r beta? It will be equal to square root of 18 into 18 into 2 into 2. Right? And further, you can say that beta square root of 18 into 18. 18 pairing of 2 into 2 means 2. So can I say that beta the value of radius will be equal to what? 36 centimeters. The value of radius will be equal to 36 centimeters. Now we need to find slant height. We know that L square is equal to r square plus h square. So L square will be equal to what? R square. R square. What is the value of radius? That is 36. So 36 square. And we need to find h square. What is the value of height here, beta? 24. 24. So the 36 square is equal to what? 1296. अगर आप 36 का स्क्वायर करते हो बेटा, it will be equal to what? 6 6 is 36, 216, and 3 6 3 is 18, 10. So it will be what? 1296. So it will be what? 1296 plus 24 square. 24 square is what? 576. 24 square is what? 576. Further, it will be equal to 1296 plus 576 will be equal to 1872. तो बेटा बेस्ट मेथड क्या है इसका स्क्वायर रूट निकालने का? दैट इज टू फाइंड इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. once we pair it, so 4 4 is 16, 8 minus 6 2, 72, 4 2 is 8. अब 8 के टेबल में बेटा 272, that is on 3, 83 3 is 249, and we are left with
23। बेटा यहाँ पे 00 आ जाएगा आपका। बेटा अगर आप 43 का डबल करते हो, 43 टू जा 86, 86 के टेबल में बेटा किस पर जाएगा, 2 पर। 86 टू जा 86। यहाँ से बेटा आपने 2 जीरो कैंसिल किए सबसे पहले, तो बेटा यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। 86 टू जा बेटा 00 कैरी किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेसिमल। 86 टू जा 86 टू जा 1724, इट विल बी लाइक 86 टू जा 1724, इट विल बी लाइक 576। फिर बेटा 00 आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली बेटा अब ये किस पर जाएगा, अब इसका आगे अगर आप देखते हो इसको, तो 2 टू जा कितना हो जाएगा बेटा, 4, 3 टू जा 6 और 4 3 जा 12। अप्रॉक्सीमेट बेटा 6 पर जाएगा, नहीं तो आप एल की वैल्यू आप लिख सकते हो 43.2 सेंटीमीटर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यू कैन राइट इट एज 43.2 सेंटीमीटर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, so which our next question is question number 8 of exercise 13.3, and this is your question. You can see the question on your screen, that is water in a canal 6 meter wide. एक कैनाल में बेटा एक कैनाल है जिसकी विड्थ आपको दी हुई है, दैट इज 6 मीटर। कितनी है बेटा विड्थ, 6 मीटर। डीप का मतलब बेटा हाइट, डीप का मतलब क्या है, हाइट। हाइट उसकी कितनी है बेटा, 1.5 मीटर। हाइट कितनी है बेटा, 1.5 मीटर, राइट। फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ये बेटा उसकी लेंथ, ये उसकी क्या है, लेंथ। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। बेटा ये मैं आपको पिक्चर से क्लैरिफाई करता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। बट आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको, वो ये कहा जा रहा है कि दिस इज द कैनाल। एक एग्जांपल के तौर पे आप समझो कि व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। जो बेटा कैनाल है आपकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से है, जिसकी विड्थ क्वेश्चन में बेटा गिवन है आपको। विड्थ कितनी गिवन है बेटा, 6 मीटर। जो इसकी विड्थ है बेटा वो कितनी है आपकी, 6 मीटर। और जो बेटा डेप्थ है इसकी वो है आपकी 1.5 मीटर। तो बेटा ये जो इसकी डेप्थ है ये आपकी 1.5 मीटर, राइट, जो इसकी गहराई है। और बेटा जो हाइट की वो बात कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, वो बेटा इसकी लेंथ है। कि जो इसमें फ्लो कर रहा है वाटर वो 10 किलोमीटर फ्लो करता है पर आवर में, यानी कि 1 घंटे में बेटा इस वाटर की जो लेंथ होती है वो कितनी डिस्टेंस होती है, 10 किलोमीटर। अब बेटा स्टैंडिंग वाटर, जैसे कि आपको यहाँ पर एक खेत दिखाई दे रहा है और आपने देखा होगा जैसे कि कुछ हमारी ऐसी क्रॉप्स होती है जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उन पे बेटा इस तरह से स्टैंडिंग वाटर को छोड़ दिया जाता है। ये जो वाटर होता है बेटा इसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग वाटर। तो एक्चुअली बेटा जो क्वेश्चन में बात हो रही है वो कुछ इस तरह से बात हो रही है। ये कैनल हो गई जिसकी विड्थ है बेटा 6 मीटर, लेंथ है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर, और ये बेटा आपकी क्या होगी, डेप्थ।
और दिस इज व्हाट स्टैंडिंग मीटर वाटर मीन। ये जो खेत है बेटा, इनमें आप देख सकते हो किस तरह से पानी यहाँ पे छोड़ दिया गया है, इसको कहते हैं बेटा स्टैंडिंग वाटर। कुछ ऐसी हमारी क्रॉप्स होते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हमें इस तरह की स्टैंडिंग वाटर की क्या होती है बेटा, ज़रूरत पड़ती है। राइट, अब किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है ये वो समझते हैं। तो बेटा अगर आप यहाँ पर देखो, नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे बेटा आपको बी भी गिवन है, एच भी गिवन है, और ये जो है बेटा आपका, ये आपका एल है। तो जो कैनल है बेटा बेसिकली वो किस शेप में आ रही है, वो आपकी कीबोर्ड की शेप। जो कैनाल की बेटा शेप है आपकी, वो किसकी शेप है बेटा, जो कैनाल की शेप है आपकी वो किसकी शेप है बेटा, कीबोर्ड। उससे बेटा दिस इज योर कैनाल, दिस इज इन द शेप ऑफ ए, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा, जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो हाइट होगी बेटा 1.5 मीटर। जो लेंथ है बेटा वो होगी 10 किलोमीटर पर आवर। जो ब्रेड्थ है बेटा वो आपकी होगी 6 मीटर। राइट। अब बेटा अगर मैं फील्ड की बात करता हूँ, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो नॉर्मल वे में अगर आप इसको ड्रॉ करते हो फील्ड को, अगर आप नॉर्मल वे में इसको ड्रॉ करते हो तो ये कुछ इस तरह से आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है। भाई फील्ड तो आपकी इसी शेप में आएगी। राइट। लेकिन क्वेश्चन में उसने आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर गिवन है, तो यहाँ पे बेटा एक हाइट गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है आपको बेटा, यहाँ पे साथ में आपको एक हाइट दे, यहाँ पर आपको बेटा साथ में क्या मिल गई है, एक हाइट। हाइट देने की वजह से बेटा जो रेक्टेंगल के साथ अगर हाइट आ गई तो बेटा यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर से ये आपका बेटा जो आपका फील्ड था, अगर मैं फील्ड की बात करता हूँ तो बेसिकली जो फील्ड है वो किस शेप में होगी है बेटा आपका, वो रेक्टेंगल की शेप में होगी है। प्लस बेटा 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर का मतलब बेटा साथ में यहाँ पर क्या आ गया, हाइट भी आ गया। तो कहना ही से दैट बेटा ये जो पोर्शन है आपका विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडिंग वाटर, ये भी बेटा क्यूबॉइड हो गया। तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, नॉर्मली बेटा जो हमने अभी देखा था उसमें हमने क्या स्टडी किया था, हमने अभी यही एनालिसिस किया ना बेटा, ये जो फील्ड होती है, खेत होता है, से वो एक रेक्टेंगल की शेप है। वो एरिया की बात करें, एरिया का मतलब बेटा यहाँ पर क्या हो गया, एरिया का मतलब यहाँ पर हो गया बेटा आपका रेक्टेंगल से। यहाँ पर एरिया का मतलब बेटा किस चीज से, आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फील्ड। तो 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर का मतलब बेटा यहाँ पे आपको हाइट गिवन है, तो उसके साथ तो बेटा रेक्टेंगल के साथ अगर आप हाइट को जोड़ दोगे देन इट विल बी अ क्यूबॉइड। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो ये जो आपकी जो यहाँ पर जो ये फील्ड है आपकी वो भी किस शेप में है, क्यूबॉइड। क्योंकि अगर फिर मैं एरिया की बात करता हूँ तो एरिया क्या है बेटा, एल इंटू बी। एरिया क्या है बेटा आपका, एल इंटू बी। अगर मैं बेटा सिर्फ एरिया की बात करता हूँ तो एरिया क्या है आपका, एल इंटू बी। राइट। इट मीन्स बेटा फॉर कैनाल, अगर हम कैनाल की बात करते हैं तो बेटा विड्थ कितनी है आपकी, विड्थ इज इक्वल टू से कैपिटल बी एंड इट इज इक्वल टू 6 मीटर। हाइट, हाइट इज इक्वल टू बेटा कैपिटल एच इज इक्वल टू 1.5 मीटर। लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू बेटा कैपिटल एल से इक्वल टू 10 किलोमीटर इन 1 आवर। इट मीन्स व्हाट बेटा, अगर मैं इसको
मिनट में चेंज करता हूँ तो इट कैन बी रिटर्न एज 10 into 1000 मीटर इन 60 मिनट। मैं इसको मिनट में क्यों चेंज कर रहा हूँ? एज यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, उसने 30 मिनट्स की बात की है। क्वेश्चन में कितने मिनट्स की बात हुई है बेटा? 30 मिनट। तो भाई ब्रेथ में तो कोई चेंज आएगा नहीं बेटा, वो तो सेम फिक्स है। हाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वाटर का फ्लो है बेटा, जिसको हम यहाँ पे बेटा लेंथ कह रहे हैं, उसमें चेंज आएगा। अगर 60 मिनट में बेटा वाटर की लेंथ 10,000 मीटर है, तो 30 मिनट्स में कितनी होगी बेटा? वी नीड टू फाइंड दैट। कैन आई से दैट बेटा 10,000 अपॉन 60 मीटर in 1 minute means 10,000 upon 60 into 30 minute meter in 30 minutes in 30 minutes, right? तो बेटा जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 31 जा 30, 32 जा 60, 2 5 जा 10, so it will be what? 5,000 मीटर in 30, राइट। तो ये तो आ गया बेटा आपके कैनाल का LBH फॉर 30 मिनट, फॉर 30 मिनट। अब बेटा अगर हम फील्ड की बात करते हैं, फोर फील्ड, तो बेटा लेंथ है आपका से L, ब्रेड्थ हो गया बेटा आपका स्मॉल b, हाइट हो गया बेटा आपका स्मॉल h, जो कि बेटा आपको गिवन है, क्योंकि यहाँ पे हाइट का मतलब क्या है बेटा? स्टैंडिंग वाटर। हाइट का मतलब क्या है बेटा? स्टैंडिंग वाटर, राइट। नाउ बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, can I say that volume of water flow from canal in 30 minutes is equal to volume of water is equal to volume of water in field? तो जितना यहाँ से बेटा 30 मिनट से वाटर का वॉल्यूम फ्लो करेगा, उतना ही पानी होगा जितना इस फील्ड में होगा। और कैनाल बेटा किस शेप में है आपका? क्यूबोइडल शेप में है। तो कैन आई से दैट बेटा कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H is equal to small l into small b into small h, right? Now बेटा कैपिटल L, लेंथ बेटा 30 मिनट में हमने अभी निकाली थी 5,000, कैपिटल B बेटा 6, और हाइट कितना डीप था बेटा? 1.5। L बेटा हमें फाइंड आउट करना है, B भी हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बेटा आपको हाइट जो है 8 सेंटीमीटर की बना है, तो अगर हम मीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि सभी यूनिट्स आपकी मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8/100। वाई? बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो बेटा L इंटू बी, जो आपका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, कैन आई से दैट L इंटू बी विल बी इक्वल टू 5,000 इंटू 6 इंटू 1.5। ये बेटा जो डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और बेटा ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 8 आपका, वो यहाँ के क्या हो जाएगा? आपका डिवाइड, राइट। So what we gonna have 2 4 जा 8,
2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। बेटा डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर इंटू में क्या आ जाएगा 10, और बेटा 0 and 0 will be cancel out, so we are left with 250। 15 6 जा कितना होगा बेटा 90, इंटू में कितना आ जाएगा 25, राइट। फर्दर बेटा इट विल बी 250 इंटू 25 into 9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 2250, right? And when you solve it, 225 into 25, it will be beta 5625 into 00 meter square, into 00 meter square. So total area, therefore total area कितना होगा बेटा जो इरिगेट होगा 562500 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल। ओके, so बेटा this is your question. Water in a canal 6 meter wide, 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. So बेटा width of the canal has been given, height of the canal has been given, and the length of the canal in 1 hour is equal to 10,000 meter. That has been given in the question. क्वेश्चन ये था बेटा how much area will it irrigate in 30 minutes. तो ये बेटा किसी फील्ड का 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट करेगा अगर उस फील्ड में 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो बेटा एरिया तो हो गया आपका L into B, बट एट द सेम टाइम इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर मीन दैट इज द हाइट। तो बेसिकली जो फील्ड है बेटा वो भी किस शेप में हो गई आपकी क्यूबॉइडल शेप में। तो बेटा दीज आर द लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट विल बी रिमेन सेम। और बेटा बात हो रही 30 मिनट्स की, क्वेश्चन में आपको जो लेंथ गिवन है 1 मिनट की गिवन थी। 60 मिनट में बेटा अगर 10,000 मीटर की रिक्वायरमेंट है तो 30 मिनट्स में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 30 मिनट्स में रिक्वायरमेंट होगी बेटा आपको 5000 मीटर। एज फार एज फील्ड इज कंसर्न लेंथ स्मॉल एल, ब्रेथ बेटा हमने एज्यूम, ब्रेथ को हमने एज्यूम किया स्मॉल बी, और हाइट जो बेटा क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जितना बेटा कैनाल में वॉल्यूम होगा वाटर का 30 मिनट्स में वही तो सारा आपका ट्रांसफर होगा फील्ड में। यही सारा पानी बेटा यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो वॉल्यूम दोनों ही दोनों साइड में बेटा कैनाल एज वेल एज इन फील्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। So by equalizing, we will be able to find the area which will be irrigated. Okay.